You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello and welcome to SMSF Connect podcast, in which we begin a new series focusing on promoting gender at workplace. I, Pooja Murada, and I, Aarti Grover, we represent the Outreach for Development team at SM Sehgal Foundation, a rural development NGO, and we will be hosting conversation on this very important topic. Let us begin by sharing a little about this podcast series. Since gender and women empowerment is a cross-cutting theme across SM Sehgal Foundation's programs in rural development, we thought bringing in expert voices on the theme and sharing good practices will not only be a learning for us, but will also benefit many civil society organizations who strive for promoting gender equality in their organization. In today's podcast, we look at understanding gender and gendering, and also see how we can have gender-inclusive approach at the workplace. We have with us today Ms. Shalini Singh, who is a lawyer and trained psychologist. Shalini has been associated with CREA, an international human rights organization, for over 15 years and has led on much of CREA's capacity building at the community level. Her work and experience has been focused on design and implementation of capacity building programs that foreground integration of gender transformative approaches being implemented by women-led community-based organizations. Shalini has been running 3 annual institutes in Hindi on sexuality, gender, feminist leadership, and rights. She has been working on language and translation for making language accessible to everyone by translating and creating resources in Hindi on gender, sexuality, and human rights issues. Welcome, Shalini. थैंक्स पूजा, थैंक्स लॉट हमें इस डिस्कशन में और इस कन्वर्सेशन में इनवाइट करने के लिए. So, it is such an important topic that, and we are very happy to have, people from one of the best organizations who've been working on gender for so many years to be a part of this series. So, Shalini, to begin with you've done work with young women and to conduct the series called It's My Body. And, I was wondering if you could tell us, how does one understand and should understand gender, as often sex and gender are mostly misunderstood and they are considered same. And how does it manifest overall in our society? जेंडर को बहुत लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड बट बिकॉज जेंडर इज अ इंग्लिश वर्ड, बट समटाइम्स उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो देन हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि देन डिफरेंट प्लेसेस में फिर इसी वर्ड को हम डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट करने लगते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव बीन आल्सो यूजिंग जेंडर एज अ वर्ड, जो सब आम तौर पर बोलचाल की भाषा में everybody talks about it. Okay. So अगर जेंडर को if I can start like बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, तो we understand gender is like a very socially basic constructed term, जिसको we can say that it refers to attitudes, roles, behaviors, experiences and feelings. And that is like किसी भी कल्चर में डिफरेंट चीजों से उसको एसोसिएट कर सकते हैं. बट इट डजंट मीन दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोल्स एंड बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस देन फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर इट इज सेम. So we associate this with every person, whether male or female or other person. And it also then influences how we are perceiving ourselves and how we are perceiving other people also and each other also. बट इतना कहने के बाद मैं ये भी कहूंगी कि इट इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड इट इज नॉट लाइक जस्ट एक बाइनरी में हम देखेंगे कि ये ऐसा ही होता है और ऐसे नहीं होता है, बिकॉज इट ऑल्सो इंटरसेक्ट्स विथ मेनी अदर फैक्टर्स and that can drive inequalities or discrimination or marginalization such as caste, religion, ethnicity, socio-economic status, age, abilities, sexual orientation और भी बहुत सारी चीजें. क्योंकि मेरी जेंडर हो सकता है महिला की है, ठीक है, और मैं महिलाओं की तरह जो भी रोल एसोसिएटेड हैं कि
जनरली जो लोग बोलते हैं कि भाई खाना बनाना आना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे बिहेवियर करो, बट उसका भी बहुत तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरी कास्ट क्या है, मेरी पढ़ाई क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ. सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अदर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑल्सो एंड योर अदर आइडेंटिटीज ऑल्सो, एंड दैट इज वाई इट इम्पैक्ट्स योर एक्सप्रेशन ऑल्सो. क्योंकि आप जिस जेंडर में है, आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत चीजें कनेक्टेड होती हैं. एंड दैट इज वाई इट इम्पैक्ट्स योर एवरीडे लाइफ, चाहे आप ऑफिस में हो या किसी कम्युनिटी में हो या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पर भी हो. क्योंकि हाउ आई एम परसीविंग वो बहुत कुछ रिलेटेड होता है हाउ अदर पीपल आर ऑल्सो परसीविंग मी. तो एक तो ये बात होती है पूजा की मेरी आइडेंटिटी क्या है, हाउ आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ, ठीक है. एंड दूसरी बात है कि हाउ सम पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुट मी इन अ बॉक्स, है ना. एंड इसका मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगी कि अगर मैं खाना नहीं बनाती हूँ, ठीक है, एज अ वुमेन, अगर मैं अपनी जेंडर पहचान में अपने आप को एक वुमेन के साथ एसोसिएट करती हूँ, उनके बिहेवियर एंड रोल्स के साथ एसोसिएट करती हूँ, लेकिन मैं खाना नहीं बनाती हूँ, तो मेनी पीपल विल टेल मी कि तुम कैसी औरत हो, तुमको खाना बनाने नहीं आता है. एज इफ इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि एक वुमेन को बाय बर्थ खाना बनाना आता है. ऑल ऑफ अस हैव लर्न दीज थिंग्स, है ना. जैसे मैंने सीखा है वैसे ही एक व्यक्ति भी सीखता है. एंड ऑल ऑफ अस नो कि बहुत सारे महंगे महंगे होटलों में जो शेफ होते हैं वो पुरुष होते हैं, ठीक है. बट हम उस चीज को इस बात से जोड़ते ही नहीं है कि हाँ, खाना बनाना एक नेचुरल बात नहीं है. वी एवरीबडी लर्न्स दैट. ये एक स्किल है. कपड़े आयरन करना, बर्तन धोना, हम सब सीखते हैं. तो ये नहीं आता है कि बचपन से कि भाई एक लड़का ये नहीं कर सकता या एक लड़की नहीं कर सकती. हम सब कर सकते हैं, बट ड्यू टू दिस जेंडर डिवीजन हमने रोल्स को भी डिवाइड कर दिया है. एंड उस रोल की डिवीजन की वजह से वी हैव क्रिएटेड दीज बॉक्सेस कि एक लड़का यही करेगा, एक लड़की यही करेगी, एक आदमी ये करेगा और एक औरत ये. एंड दैट इज वाई हमारे प्रोग्राम में वी स्टार्टेड वर्किंग विथ यंग गर्ल्स. इन चीजों के प्रति जो मिथ्स हैं उसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करना, बिकॉज हम बचपन से इतना सुनते हैं जेंडर को लेकर ना. वी ऑल्सो अज्यूम कहूंगी या हमारे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगी बट एक फैक्ट हम सोच लेते हैं कि आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स बिकॉज आई एम अ गर्ल. आई कैन डू ओनली दीज थिंग्स बिकॉज आई एम अ गर्ल. तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है. एंड हम अपने इट्स माई बॉडी प्रोग्राम में जो लड़कियों के साथ काम करते हैं बहुत ज्यादा इस पर बात करते हैं. एंड ये यंग लड़कियों के साथ बात करना बहुत जरूरी है कि आप बचपन से ये अगर बातचीत नहीं करते हैं तो बाद में जाकर चेंज करना और मुश्किल हो सकता है. दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल. सो ये जेंडर की बात हुई. एंड कई बार व्हाट हैपेंस पूजा की पीपल ऑल्सो थिंक कि सेक्स और जेंडर सेम है ना. और जब सेक्स वर्ड को हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये बहुत कुछ बायोलॉजिकल टर्म से जुड़ा हुआ है. जिस बॉडी के साथ आप जन्म लेते हैं, है ना, तो दिस इज नॉट एक तरह से सोशली कंस्ट्रक्टेड. इसको बायोलॉजिकल हम बोल सकते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स के बेसिस पर आपके सेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. एंड सो दे आर डिफरेंट बट नॉट टोटली डिफरेंट बिकॉज in many terms actually gender is connected to sex also, ठीक है. And sex is also connected to gender because एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की वजह से आपको एक स्पेसिफिक रोल दे दिया जाता है कि आप ऐसे ही रहोगे. एंड जनरली डॉक्टर्स बाय बर्थ लोगों को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये लड़का है या लड़की है ना. और उसमें फिर एक बाइनरी क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे ही दो लोग होते हैं. कई बार ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके में भी बॉडी पार्ट्स इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं या इतने क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तो भी डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि उनको हम किस कैटेगरी में रखने जाते हैं. सो वो कैटेगरी डिवीजन उस समय से ही हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी की वजह से और फंक्शन की वजह से सारी चीजें. एंड वो फिर आपको डिसाइड करता है कि एक लड़का जब बड़ा हो रहा है तो वो क्या करेगा और एक लड़की जब बड़ी हो रही है तो क्या करेगा. अरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं.
तो ये जेंडर सोशलाइजिंग आप कह रहे हैं वही जन्म से ही शुरू कर देते हैं. हाँ, और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो लाइफ लॉन्ग वी कंटिन्यू. एंड व्हेनेवर यू ट्राई टू ब्रेक दिस पैटर्न आल्सो ना, वो बहुत आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है. एंड वी हैव सीन स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर वी हैव सीन, मतलब लड़कियों के साथ जब हम खेलने की बात करते हैं, इस माई बॉडी में भी एक्चुअली वी हैड ट्राइड कि हम खेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और लड़कियों से जब हमने पूछा कि आप कौन सा गेम खेलना चाहती हैं, तो सबने वही टिपिकल, पहले तो शुरू हुआ कि हम मेहंदी लगाने का कंपटीशन कर सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज सीन दोज स्पोर्ट्स, क्योंकि घर में बैठकर खेलने वाली चीजें. दे विल नेवर टेल यू कि हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ना. तो वो सोच में ही कभी वो बात नहीं आई. बिल्कुल बिल्कुल नहीं आई. एंड जब आप बोलते भी हो कि आपको फुटबॉल खेलना है, आप खेल सकते हो, देन इट टेक्स टाइम उनको उस चीज को पुश करने में, है ना. क्योंकि एक लड़की के रूप में जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, एक जेंडर, एक फीमेल जेंडर के रूप में, यू आर टॉट टू सिट इन अ पर्टिकुलर वे, है ना. तो पैर कैसे रखना है बैठने समय, और जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो वो वहां पर एक क्रिएट करता है हेजिटेशन कि मैंने हमेशा ऐसे बैठना सीखा है, ऐसे चलना सीखा है, सो नाउ हाउ कैन आई रन लाइक दिस, हाउ कैन आई सिट लाइक दिस, समझ रहे हो. तो वो एक एक स्टेप पर हमारी अपब्रिंगिंग में चली जाती है. सो एक औरत जब बड़ी हो रही है, एंड इफ शी इज नॉट कुकिंग एंड 10 लोग बोलते हैं, तो देन शी स्टार्ट्स फीलिंग गिल्टी कि हाँ, एक औरत हूं तो मुझे खाना बनाना आना ही चाहिए. एंड इस प्रोसेस में व्हाट हैपेंस कि लॉट ऑफ पावर हायरार्की भी क्रिएट हो जाती है ना. सो देयर इज वन जेंडर, जो मेल जेंडर है, वो हमेशा एक पावरफुल सिचुएशन में, मोस्टली पावरफुल सिचुएशन में रहता है, बिकॉज उसको मोस्टली एज अ सिस्टम मेल जेंडर इज गेटिंग फैसिलिटीज, मेल जेंडर इज गेटिंग प्रेफरेंस. तो हर घर में बेटे की चाहत होती है, हर घर में बेटा जरूरी होता है, क्योंकि वही पैसे कमा के लाता है. हाँ, आपके आसपास, मेरे आसपास कितनी फैमिलीज हैं जहां शायद मेल मेंबर्स आर नॉट अर्निंग एनफ एंड उनकी वाइफ्स आर अर्निंग मोर देन देयर हस्बैंड, बट वाइफ्स विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्रेड अर्नर ऑफ दैट फैमिली, है ना. बहुत आप इक्का दुक्का एग्जांपल सुनोगे, कोई कहेगा कि भाई मेरा घर इस माँ की वजह से चलता है, या मेरी बेटी की या औरत की वजह से. तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में एकदम एंटर कर जाता है. मैं आपको कल की बात बताती हूँ. मुझे याद है आपकी बात से, मुझे हमारी कम्युनिटी में जो मीटिंग्स करते हैं वो बात याद आ गई. फॉर इयर्स हम लोग जब लोगों को बुलाते थे गांव में मीटिंग करने के लिए, तो मेल आ जाते थे, दे वुड टेक द फ्रंट रोज, और बहुत जद्दोजहद से हम जब महिलाओं को बुलाते थे, दे वुड सिट इन द एंड एट वन कॉर्नर. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम कम फॉरवर्ड एंड सिट. वो एक चैलेंज था. फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उस जगह पे पहुंचे, जब महिलाओं ने आना शुरू कर दिया, तब भी 2 अलग अलग ग्रुप्स बन जाते थे. तो वन साइड ओनली मेन विल सिट एंड द अदर साइड ओनली वुमेन विल सिट. तो वो इंटीग्रेट करने का जो एक जर्नी है, आई वुड स्टिल से वो चल ही रही है. We haven't still reached where they can be comfortable sitting together. एकदम एक बार हमने एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये बात की थी, एंड व्हाट वी नोटिस पूजा की ऑर्गेनाइजेशन में जनरली बैंक वाले सारे काम, जो बाहर जाने वाले काम है, वो सारे मेल को ही दिए जाते हैं. एंड वो बहुत मतलब ये अंडरस्टूड है कि फाइनेंशियल मैटर्स दे विल हैंडल, ठीक है, और किचन मैटर्स विमेन विल हैंडल. तो चाय बनाने का काम वो कौन कर रहा है, तो हम अपने ऑफिस में भी दे सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं. बहुत वो हिडन वे में भी कई बार काम करता है, एंड वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि हाँ ये कर रहा है काम. एंड दैट इज वाई वो जो जेंडर इक्वालिटी पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी जो डायरेक्टली काम कर रही है, समटाइम्स वो भी हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज एट एवरी पॉइंट. Thank you. This was really insightful. Listeners, stay tuned as there's more coming up in the next podcast. Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.